आज का पेपर चेक किया आपने, अहमदाबाद मिरर? तो उसमें एक न्यूज़ है जो मैं अभी जस्ट आपको बता रहा हूँ. आई होप यू कैन सी दैट. कैन यू सी दैट? आई होप यू कैन. सो क्या बोल रहे हैं ये लोग? इन केस आपको क्लियरली नहीं दिखाई दिया हो तो मैं एक बार पढ़ लेता हूँ. दिस इज़ रिलेटेड टू द fire in that entertainment zone or game zone called TRP game zone in Rajkot, where about 27 odd deaths happened, and out of which a lot of them were kids. So क्या बोल रहे हैं ये लोग? TRP probe hit by बड़े मियाँ छोटे मियाँ police norm. That's right. So, transferred Rajkot Police Commissioner Mr. Raju Bhargav says SIT Chief Mr. Subhash Trivedi cannot summon him as he is junior to him. तो ये चल रहा है अभी, और ये केस अब ऐसे ही ड्रैग होगा इन सब कारणों की वजह से. मतलब ये सब तर्क हैं और ये सब कारण हैं जो दिए जा रहे हैं. Mr. Raju Bhargav, Rajkot Police Commissioner, who's been transferred by the government now, he says he cannot be summoned by a junior. Forget responsibility, forget taking responsibility of things, like government employees, such big people at such high positions. So forget responsibilities. Right? It's happening in their city, under their watch, in their hierarchy. अब आप बोलेंगे hierarchy में कितने लोग को संभाल सकते हैं, ये सब वो arguments भी ठीक हैं, आप कितने लोगों को संभाल सकते हो. पर अगर ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं तो क्या आपके पास ये एक ऐसा रेस्क्यू ऑप्शन है कि आप बोल सकते हैं कि a junior cannot summon him, a junior who is a part of the SIT, to probe what happened and what didn't happen, and to collect all things together, papers, evidences and things like that, and then to pin responsibility on people as to who was really responsible and not responsible. Obviously जिसका direct touch है, by that what I mean is people lower in the hierarchy, again doing clerical stuff or doing whatever under these guys' watch. सो उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, बट क्या उनके ऊपर इन लोगों को कुछ भी पता नहीं था? इट्स हार्ड फॉर मी टू बिलीव, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट SIT सेज, SIT जो भी बोले. पर मेरे लिए ये बिलीवेबल नहीं है कि इन लोगों को पता नहीं था कि हो क्या रहा है और कौन रिस्पॉन्सिबल है कौन नहीं है. आई डोंट थिंक वो डाउट में है. तो अब ये केस को ऐसे ड्रैग करेंगे कि भाई ये जूनियर था तो ये मेरे को समन नहीं कर सकता, फलाना ठिकाना. These kind of things are going to take place, procedural things, supposedly procedural. These kind of excuses will be given in the court of law. On every such excuse, perhaps a new date may be asked for and another dragging season may take place. 27 people died, and we cannot pin responsibility, we cannot fix responsibility. I mean, in terms of job profile or what you say, in terms of defining the roles and responsibilities, I am pretty sure ये सारी चीज़ें इनके roles and responsibilities में लॉ की तरफ से या जो भी डिपार्टमेंट की तरफ से ये सब लिखी गई हैं, ऑलरेडी मेंशन है ऑन पेपर. पर फिर भी अब इसे इस ढंग से ही ड्रैग किया जाएगा. 27 पीपल डाइड एज पर दिस आर्टिकल. 27 पीपल, विमेन एंड चिल्ड्रन इंक्लूडिंग. और ये केस को वापस ड्रैग किया जाएगा और ये बस इसी तरह से चलता जाएगा. काफ़ी सारे अरेस्ट भी हुए हैं, बट किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी या नहीं होगी
हाँ आप बोलोगे डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसी की नहीं है एक्सेप्ट द गेम जोन ओनर्स. श्योर, वो अल्टीमेटली वो तो है ही ना, जो ओनर है वो तो रिस्पॉन्सिबल है ही. पर आपने ओनर के साथ मिलकर या जो भी है ओनर के साथ आप मिले नहीं होंगे, बट आपने क्या किया है, आपने भी तो ओनर को अलाउ किया ना अंडर योर वॉच to do all these things. And if you allowed, then what's to be done? What should be done? Are these people responsible or not responsible? Like Commissioner of Police Rajkot, would he be responsible or not responsible? What do you think? Any other, like the municipal commissioner, obviously I see that even he has been transferred in this article. So are these people responsible or not responsible? What should happen with these people? Or will they be made authorities in some other domain or what? I don't know. In some other office somewhere where things are forgotten. Already this news still appears on the front page, and that's the good fortune of this piece of news, that it is appearing on the first page of Ahmedabad Mirror. पर कुछ और दिन हो जाएंगे शायद, फिर ये फ्रंट पेज पे ना आए, फिर ये थर्ड फोर्थ पेज पे ही आएगा, और फिर थर्ड फोर्थ पेज से शायद उसका साइज़ कम हो जाएगा, और साइज़ कम होने के बाद ऑब्वियसली हम वैसे ही कम पढ़ते हैं, तो जब हमारी नज़र जाएगी तो ठीक है, नहीं नज़र जाएगी तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा पेपर में स्पेस लेगा, और फिर पता नहीं इसका जजमेंट जब भी आएगा तो हम ध्यान देंगे नहीं देंगे, कब जजमेंट आएगा. एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने सुनी अभी, एक एडवोकेट हैं अश्विनी उपाध्याय करके, वो सुप्रीम कोर्ट में वो लड़ते हैं, लिटिगेशन करते हैं. सो वो बार बार ये इंसिस्ट करते हैं, मैं उनके अलग अलग वीडियोज़ में ये देख चुका हूँ कि वो बार बार ये बोलते हैं कि एक तो ये कि कोई भी केस है तो उसका 1 साल में जजमेंट आना चाहिए. दैट्स राइट, उसका लिमिट होना चाहिए. टाइम विद इन अ सर्टन टाइम फ्रेम थिंग्स शुड हैपन, एंड दैट लिमिट ही सेज शुड बी 1 year. विद इन 1 year थिंग्स शुड बी सॉल्व्ड, एंड वट एवर हैज़ टू बी डन शुड बी डन इन 1 year's टाइम. दूसरा वो ये बोलते हैं कि झूठ नहीं बोलना है. अगर अगर किसी केस में या जो भी है, जैसे कोई झूठी कंप्लेन, पुलिस कंप्लेन करें या झूठी FIR करें या झूठा केस में झूठा बयान दें या जो भी, राइट, इन टर्म्स ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स अगर कोई झूठ का सहारा लेता है या झूठ बोलता है तो उसको भी बहुत अच्छी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और उस केस को मतलब झूठी कंप्लेन को रद्द कर देना चाहिए, और उसको जिसने ये झूठी कंप्लेन की उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए. सो दैट वाज हिज सेकेंड पॉइंट. तो वो बोलते हैं कि अगर झूठ पे अगर बहुत बड़ा पनिशमेंट रखा जाए, अच्छा पनिशमेंट मतलब बहुत बड़ा मतलब अच्छा पनिशमेंट रखा जाए, तो ये जो झूठे केसेस, झूठे कंप्लेंट्स, झूठी FIRs या झूठे विटनेसेस, ये सब जो चीज़ें हैं, राइट, इवन अगर विटनेस को भी ये डर हो कि मेरे झूठ बोलने से मुझे सज़ा मिल सकती है, और मिल भी जाए, तो कितने सारे केसेस कम हो जाए. एंड आई एग्री विथ हिम, बहुत सारे केसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली. और ये 1 year का जो रूल है, अगर वो 1 year का रूल चलेगा तो ये सारे जो तर्क वितर्क हैं कि ये समन नहीं कर सकते, वो समन नहीं कर सकते, कोर्ट वुड आई सपोज ऑटोमेटिकली डिसमिस सच काइंड ऑफ थिंग्स, राइट, डिसमिस सच काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, नॉट लेट सच काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिले प्रोसीडिंग्स. सो आई डू अग्री विथ अश्विनी उपाध्याय जी. अगर आपको टाइम मिले तो कभी उनके वीडियोस देखना. ही coming from a legal standpoint, he talks on a lot of topics. A good part of his topics relate to politics and things like that. But I do agree with him on the time frame and on this thing about lying. Do not lie. If you lie, you will be punished. If that is followed, plenty of things would automatically reduce. Plenty of cases automatically would reduce.
So what do you think about this Rajkot case? Have you been following this? Do you have any opinion what to do about this, what not to do? Who should be held culpable? If they're held culpable, should they be put behind bars? Should such officers get some punishment? What kind of punishment? Is transfer a punishment? Apparently, I see that they have been transferred. So is transfer a punishment? Yeah, even like a judgment coming after 5 years or 10 years or things like that. Is that punishment? तब तक तो हम भूल भी जाएंगे और शायद इग्नोर भी कर देंगे. मान लो इनको कोई पनिशमेंट दिया भी तो हम भूल जाएंगे या ऐसा ही कुछ होगा. That is, I mean, bad really, but what can one do? That's how it is happening, and that's how it has been working for a long time. Share your views, and I'll share some more views on topics like these in the coming videos. Thank you. Have a good day.